Hello dear students, today I am going to start a new chapter in part 2, chapter number 1 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce, session number 1 of Rectification of Errors. As per the syllabus, point number 1, 2, 3 and 4. 4 points are there in our examination. Fifth point, it will be not there. The reason is the 30% reduction. That is effects of the rectification on profit loss. With that illustration number 5, it will be deducted. Now let's start with the introductory part of this chapter. Information regarding arithmetical errors in preparing a journal, posting in ledger and extracting balances of accounts can be obtained by preparing a trial balance. So this process already completed. We already discussed how to prepare different type of the things, right, as per the accounting method, as per the principles, as per the different of the rules, regulation. Okay, so we will start with the journal, then after post them in ledger, and lastly we will find out the balances on the base of the ledger, and lastly we will prepare the trial balance. This is the process. So if debit side and credit side of trial balance tallies, it is believed that there is no arithmetical error in recording the transactions and posting and extracting balances of accounts. At the end of the one particular financial year, we will prepare the trial balance. If both the sides are tallied, that means arithmetically we are completely fine. Arithmetically is, we can say the transactions are recorded in a proper way, accounts are tallied. So हम ऐसा कह सकते हैं कि अरिथमेटिकली हमने सब कुछ सही किया है, लेकिन किंतु परंतु बट इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ये टैली नहीं होता है, यही मेन प्रॉब्लम है. इट इज नॉट टैलिड, देयर मस्ट बी सम एरर्स इन राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स and the errors are detected and rectified. So when journal entries are a proper way, it is totally posted in a proper way, the total, then after find out the balance, thereafter the tallied. तो ये कंप्लीट जा रहा है, लेकिन वो टैली नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, तो देयर मस्ट बी एरर. मे बी एरर इन राइटिंग बुक्स, एरर जो भी है हमें ढूंढनी पड़ेगी, राइट, एंड देन आफ्टर वी हैव टू rectify. It is compulsory. In fact, trial balance is not final yardstick of accounting errors. यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है. अगर ट्रायल बैलेंस में समझ लो ये टैली हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट सही भी है. इसके भी दो तीन और ऑप्शन है, राइट. जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, दैट मीन्स के पॉइंट एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. फोर्थ वन, एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. तो कई ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं भी करेंगे, कई ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे भी. तो समटाइम्स ये यार्डस्टिक नहीं है, ये फाइनल थिंग नहीं है ट्रायल बैलेंस. इवन इफ द ट्रायल बैलेंस टैलीज, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट एरर्स मे हैव बीन कमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स. तो ऐसा भी है कि ट्रायल बैलेंस टैलीड हो गया फिर भी मिस्टेक्स हो सकता है. इट इज़ दैट 101% वो श्योर नहीं है. ट्रायल बैलेंस आपको 100% रिजल्ट नहीं देता है. इट इज़ ओनली जब टोटली टू साइड्स आर आइडेंटिकल, देन वी कैन से दैट्स ट्रायल बैलेंस इज कंप्लीट. लेकिन हर बार ये नहीं होता है. सो द ट्रायल बैलेंस, maybe we can say errors affecting that one, that is in trial balance, and errors not affecting the trial balance must be detected and rectified. तो कैसे मालूम पड़ेगा? It will be completely done through the auditing. तो हमें उसको ऑडिट करना पड़ेगा, हमें उसको देखना पड़ेगा. सो दोनों ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाले और ट्रायल बैलेंस को नहीं अफेक्ट करने वाले एरर्स. द अकाउंट्स विल रिवील और इट विल रिवील द ट्रू पिक्चर ऑफ बिजनेस ओनली व्हेन दिस एरर्स आर रेक्टिफाइड. ये पिक्चर क्लियर तभी होगा, राइट, और यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द रियल अकाउंट व्हेन द एरर्स आर रेक्टिफाइड, व्हेन द एरर्स आर फाइंड आउट, व्हेन द एरर्स आर डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड. ओके, सो दिस प्रोसेस इज इनएविटेबल. ये जरूरी है, अनिवार्य है, इसको करना पड़ेगा. द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स इन अकाउंट्स एंड रेक्टिफाइंग दैम इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. दैट इज 1 मार्क मीनिंग कि ये रेक्टिफिकेशन एरर क्या है. द होल प्रोसेस इज दैट. सो प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स, ये एक प्रक्रिया है एरर्स फाइंड करने की अकाउंट्स में और उसको रेक्टिफाई करने की. सिंपल, फाइंड आउट द एरर्स, रेक्टिफाई द, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स.
See some of the objectives of the rectification errors. Here 4 objectives are there. First one, when the error is detected in accounts before preparing a trial balance, it is to be rectified. तो आपने लेजर पोस्टिंग कर दिया, बैलेंसेस फाइंड आउट कर दिया, अब आप ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हो, उससे पहले डिटेक्ट हो जाता है राइट, अकाउंट्स में कोई भी एरर हो जाते हैं, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो राइट. ये रेक्टिफिकेशन एरर का पहला ऑब्जेक्टिव. सेकंड वन, व्हेन द एरर इज डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर, समझ 2019-20, 2021-2021, तो हमने उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया, सो उसको भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसका भी एक अलग सा वे है. थर्ड वन, टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बाय रेक्टिफाइंग द एरर्स. सो सिंपली हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है राइट, वो करेक्ट मिलना चाहिए. प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए और लॉस ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए. तो याद रखो, वी हैव टू डिफाइन और वी हैव टू फाइंड आउट राइट दैट व्हाट इज़ दिस रेक्टिफिकेशन एरर. ये इसको समझ के आपको मालूम पड़ क्या होगा, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे मिक्स कर रहे हैं राइट. सिंपल है ना, अगर एरर ज़्यादा है, खर्चा बढ़ गया है, भूल से खर्चा लिख दिया है, तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, सो इट विल बी रेक्टिफाइड. तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस सही मायने में करेक्ट चाहिए, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा. फोर्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव, टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन करेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बाय रेक्टिफाइंग द एरर्स. तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, टू नो द प्रॉफिट और ट्रू प्रॉफिट, एंड लास्टली टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी अच्छी होनी चाहिए, योर लायबिलिटीज एंड एसेट्स. तो ये सब तभी हो सकता है जब हम हमारी एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे. अगर एरर्स रेक्टिफाइड नहीं है तो पिक्चर क्लियर नहीं आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर नहीं आएगी. सो सिंपली टू रेक्टिफाई द एरर, एंड अकाउंटिंग इफेक्ट इज गिवन रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव एरर. सो इफ दिस टाइप ऑफ द एरर्स आर देयर, वी हैव टू गिव the particular effect, accounting effect must be given to rectify that error. And rectification of error has a virtual importance in accounting system. वो दिखता नहीं है लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंस है, वर्चुअल इम्पोर्टेंस, वो याद रखना राइट. कई बार ऐसा होता है कि मे बी द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. आपको ऐसा लगता है कि चलो 500-1000 रुपये की मिस्टेक्स है, एरर्स है, रेक्टिफाई नहीं की चलेगा, लेकिन इट विल नॉट शो यू द ट्रू पिक्चर. तो एक वर्चुअल इंपॉर्टेंस है इसका, इन अ डिफरेंट वे. कोई भी वे हो सकता है, लेकिन उस वे से देखने जाओ तो सिंपली इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग. सो ये 4 अलग अलग हमारे ऑब्जेक्टिव से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के. नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स. Here it is. Just look after the first of all list. Okay, one by one I will show you and give you the information regarding this one. Accounting errors are classified into 2 parts. These two, based on whether they affect the trial balance or not. So the first type is errors which do not affect the trial balance, and B, errors which affect the trial balance. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, और ये जो पार्ट है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है. तो आप समझ सकते हो कि ट्रायल बैलेंस को जो अफेक्ट नहीं करता है उसका कुछ अलग से हमें एंट्री देना पड़ेगा, और जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है उसका भी हमें अलग से एंट्री देना पड़ेगा राइट. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्टिकुलर मिस्टेक हुई है वो अगर आप कहीं ना कहीं तरह रेक्टिफाई ना भी करो तो उसकी इफेक्ट कोई एक पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस के आउटपुट पर आइडेंटिकल जो भी टोटल आएगा उसके ऊपर एंट्री ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है. लेकिन वी कैन से एज पर द अकाउंटिंग रूल, प्रिंसिपल, कन्वेंशन जो हमने 6 चैप्टर देखा है उसके हिसाब से सब कुछ प्रॉपर जाना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ दिस एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. द फर्स्ट वन, एरर्स ऑफ ओमिशन. सेकंड वन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. थर्ड वन, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट. फोर्थ वन, एरर्स कमिटेड at the time of recording in primary books, and fifth one, compensatory errors. पहले एक बार ये सब 5 जो एरर्स है उसके नाम ठीक तरीके से तैयार कर लेना, उसके बाद ही आप अंदर निकल सकते हो. अंदर से
कुछ निकाल सकते हो। सिंपल थिंग है, आपको मालूम ही नहीं है ये क्या ओमिशन क्या है, कमीशन क्या है, कंपेंसेटरी क्या है, राइट। ये कई अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, राइट, प्राइमरी बुक्स में। तो रॉन्ग अकाउंट में कैसे जा रहा है। दूसरा है द एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग, यानी आपने पोस्टिंग सही तरीके से नहीं किया है। एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है, डेबिट से क्रेडिट हो गया, क्रेडिट का डेबिट हो गया, शायद स्क्वायर अप भी हो सकता है। थर्ड वन, एरर्स इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक्स, शायद परचेस बुक का टोटल ठीक तरीके से नहीं हुआ है, ये भी एक ट्रायल बैलेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। और फोर्थ वन, एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ द प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है उस टाइम पे कोई मिस्टेक हुआ है, मे बी डेबिट क्रेडिट का एक मिस्टेक हो सकता है। ओके, सो these are the some types of accounting errors. So let's start with the errors which do not affect the trial balance. So error do not affect the trial balance. A trial balance is prepared to know whether the accounts are arithmetically correct or not. तो जो भी अकाउंट बनाए हुए वो अरिथमेटिकली करेक्ट है या नहीं, वो हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। वो हमने चैप्टर में देख लिया है, सेपरेट चैप्टर में। बट it cannot be said that the accounts are perfectly correct only because the trial balance is tallies. ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, आइडेंटिकल टोटल है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अकाउंट्स जो भी हमने डाले डेबिट क्रेडिट किए वो सब करेक्ट है। हो सकता है कमीशन हमने डेबिट करने की जगह क्रेडिट भी कर दिया, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड था तो हमने क्रेडिट किया, लेकिन कई बार हमने पूछा गया सिर्फ कमीशन लिखा और हमने क्रेडिट कर दिया है, तो वो कमीशन क्रेडिट नहीं होता है, वो इनकम नहीं, वो पर्टिकुलरली एक्सपेंस कहा जाता है, राइट। अगर इनकम होता तो लिखा होता कमीशन रिसीव्ड कमीशन, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास है। सो समटाइम इट हैपन्स कि वो टैली हो गया ट्रायल बैलेंस, दैट डज नॉट मीन दैट द अकाउंट्स आर परफेक्टली करेक्ट। सो एट टाइम्स सम अकाउंटिंग एरर्स एग्जिस्ट इवन इफ द ट्रायल बैलेंस टैलीज। तो कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस भले ही टैली हो गया, 100% वो हो जाएगा, लेकिन एरर्स है। Such errors are known as errors not affecting the trial balance. तो ये जो errors आ जाता है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है और फिर भी कुछ ना कुछ एरर आपको दिखती है, राइट। तो दैट इज नोन एज एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सच एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजीली। ये एरर आपको दिखेगी नहीं। चलो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है तो आपको मालूम पड़ गया कि 5,000 डेबिट साइड पर कम है, तो आप समझ सकते हो, राइट, कि 5,000 डेबिट साइड पर कम है, इसका मतलब कोई एक्सपेंस आपने नहीं डाला है, डेटर्स लिखना भूल गए हो, कोई भी जो डेबिट बैलेंस होता है वो कुछ ना कुछ आप मिस्टेक से भूल चुके हो, तो हो सकता है। क्रेडिट साइड पर होता है तो इनकम रह चुकी होती है, सेल्स में कुछ डिक्रीज किया, कुछ भी। लेकिन जब ये प्रॉब्लम होता है नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तब आपको उसे डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दे कैन बी नोन बाय कंपेयरिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम ट्रेडर्स। ये कैसे आप समझ और ढूंढ सकते हो, तो कंपेयर करो आपका रिकॉर्ड्स जो आपने रिसिट्स किया है, कस्टमर से डेटर से आपने कुछ रिसिट किया है, आपने ट्रेडर्स को पेमेंट किया है, वाउचर्स ऑफ परचेस जो भी उसके वाउचर्स है, जो भी हमने बिल बनाए हुए परचेस के हमारे पास है, एंड सेल्स ऑफ एसेट्स आपने सेल किए हुए, ऑल्सो बाय कोरस्पॉन्डिंग विद द बैंक से कुछ में भी हो सकता है, by preparing BRS chapter number 10 11 I think, right, that is in part 1, so that is preparing BRS, and lastly by exchange of copies of accounts or at the time of auditing of accounts। तो you can say कि ये सब को ढूंढने के लिए, यानी कोई भी एरर आपको ढूंढना है, ये जो टैली हो चुका है उसके बाद, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, राइट। एक पर्टिकुलर आपको एक ऐसा बेस तैयार करना पड़ेगा जिससे आप ढूंढ सको कि ये टैली तो हो गया है ट्रायल बैलेंस, फिर भी मिस्टेक्स क्यों हैं, राइट। वो ऑडिट करने के बाद मालूम पड़ेगा, वो अकाउंट्स की जो एक्सचेंज करेंगे हम कॉपीज़, राइट, उसको देख के मालूम पड़ेगा ये सब हो सकता है, राइट। सो उसके बाद अगर मिल जाए तो यू कैन रेक्टिफाई। सो टू रेक्टिफाई दिस एरर डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर ऑल दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। आपको क्या करना है to rectify these errors, whether detected before or after preparing a trial balance or before or after preparing final accounts, rectification entry must be passed in the journal proper। तो एक चीज़ याद रखो कि समझ लो कि ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया है, रेडी होने के बाद मालूम पड़ा
अच्छा, वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, नहीं भी करता है। आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया है, अभी करना बाकी है। जो भी पोजीशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो स्टेज पर आप हो, यू हैव टू गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्री इन जर्नल प्रॉपर। तो ये जर्नल प्रॉपर में हमें इसकी एंट्री देनी पड़ेगी। सो नाउ अंडरस्टैंड द एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर्स। ओके, सो फर्स्ट एरर दैट इज एरर ऑफ ओमिशन देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट एरर ऑफ ओमिशन क्या है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर द मीनिंग। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड टू बी recorded in the journal or the subsidiary book or the ledger, such an error is known as an error of omission। यानी इसका मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड, आप उसको भूल ही चुके हो, लिखा ही नहीं है। डोंट फॉरगेट, राइट? अगर फॉरगेट हो सकता है, राइट, तो मिस्टेक्स भी आएगा। यानी सिंपल है ना, आप उसके भूल गए हो तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा क्योंकि उसकी एंट्री नहीं दी है ना। परचेज 5,000 का किया था और पेमेंट उसका बाकी है, तो परचेस किया हुआ है और गुड्स गिवन बाय दी सो एंड सो पर्सन, तो एंट्री नहीं है, तो दोनों साइड डेबिट क्रेडिट 5,000 हुए ही नहीं है, तो फिर टैली तो हो ही जाएगा ना, सिंपल। तो इस ओमिटेड है, तो जर्नल में हो सकता है, सब्सिडरी बुक में हो सकता है, और किसी भी लेजर में भी उसको हम भूल सकते हैं। अगर लेजर में जर्नल दिया, सब्सिडरी में बुक में एंट्री भी दिया, लेकिन लेजर में उसका पोस्टिंग नहीं किया, तो सिंपल आपका जो भी लेजर पोस्टिंग हो रहा है उसके बाद जो टोटल आएगा उसमें वो दोनों साइड पर नहीं होंगे। सो द ट्रायल बैलेंस विल टैली इवन दो एरर ऑफ ओमिशन इज कमिटेड बिकॉज पोस्टिंग इज ओमिटेड ऑन बोथ क्रेडिट एंड डेबिट साइड। तो अगर आपने पोस्टिंग ही नहीं किया है, अगर आपने उसकी जर्नल एंट्री ही नहीं दी है, अगर आपने उसकी सब्सिडरी बुक में एंट्री नहीं दी है, तो बट नेचुरल उसका पोस्टिंग नहीं होगा। और दोनों में एंट्री दी है, यानी दोनों में से एक में, जर्नल में या सब्सिडरी बुक में, लेकिन आप पोस्टिंग करना ही भूल गए हो, तो बाय डिफॉल्ट वी कैन से पोस्टिंग इज ओमिटेड। सो डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड उसकी एंट्री नहीं है। सो एरर्स ऑफ ओमिशन एंड टेक प्लेस इन 2 स्टेजेस। तो ये 2 स्टेजेस में हो सकता है। स्टेज नंबर 1, अ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक और द लेजर। ये तीनों में से किसी एक में हमने ट्रांजेक्शन लिखा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल को ध्यान रखना, सिर्फ कैश सेल्स ऑफ ₹2000 इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। कीप इन माइंड द वर्ड लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, यानी रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो बाय राइटिंग करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन द अबोव एरर विल बी रेक्टिफाइड। तो फिर दे दो ना, एंट्री दे दो, सिंपल। जर्नल में कैश अकाउंट डेबिटेड 2000 टू सेल्स अकाउंट 2000। हमने कैश लिखा ही नहीं है, हमने सेल्स लिखा ही नहीं है, कैश सेल्स, तो लिख देते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, आपकी जो जर्नल एंट्री के बाद नरेशन है वो खास याद रखो। बीइंग द एंट्री ऑफ ₹2000 कैश सेल इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, यानी आपने उसकी एंट्री नहीं लिखी थी, वो लिख दी, दैट्स ऑल। सो अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर दिया है। ये थे जो अनरिकॉर्ड एंट्री थी, टोटली ओमिट हो गई थी। दूसरा उसका पर्टिकुलर जो 2 कमीशन ओमिशन के बेस पर स्टेजेस होते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन इज टोटली रिकॉर्डेड इन जर्नल और इन द सब्सिडरी बुक्स और इन द लेजर, यानी तीनों में यहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो रिकॉर्ड कर दो। ये सिर्फ आपको जर्नल का दिया है, ऐसा आपका ट्रांजेक्शन जो होगा वो शायद सब्सिडरी बुक का होगा, लेजर में उसका पोस्टिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इन तीनों में वो रिकॉर्ड हो चुका है। बट पोस्टिंग ऑफ बोथ अकाउंट्स आर ओमिटेड, लेकिन आप पोस्टिंग करना भूल गए हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राज फर्नीचर मार्ट ऑफ ₹5,000 is recorded in journal proper, but it is forgotten to be posted in the accounts of furniture and Raj Furniture Mart in the ledger। तो ये जो ट्रांजेक्शन था, आपने फर्नीचर परचेज किया, एसेट काउंट इन एसेट अकाउंट डेबिटेड टू इट इज गिवन और इट इज रिसीव्ड फ्रॉम दी पर्टिकुलर राज, यानी कि क्रेडिट पर लिया हुआ है, तो नेम ऑफ द गिवर। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ये एंट्री हमने दे दी है ना, जर्नल में या जर्नल प्रॉपर में, किसी में भी आप दे सकते हो। यहाँ हमें जर्नल प्रॉपर में बोला है तो हमने उसमें उसकी एंट्री दे दी है, लेकिन उसका पोस्टिंग करना भूल गए, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड उसकी एंट्री राज फर्नीचर मार्ट नहीं आए और राज फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर फर्नीचर नहीं आया। तो अब क्या करना पड़ेगा? चलो, टू रेक्टिफाई दिस एरर देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर, बट the error will be rectified by debiting furniture account and crediting Raj furniture account in ledger। तो सिंपल आप उसको लेजर पोस्टिंग कर दो।
अगर कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी एंट्री नहीं भी दी होती है और डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर दो तो भी चलता है। आपको तो ट्रायल बैलेंस टैली करने से ही मतलब है। ओके, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो भी चुका है और इसकी एंट्री नहीं दिया तो फिर भी आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हो, है। तो दोनों का जो भी बैलेंस आएगा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आएगा। ऑब्वियसली फर्नीचर है डेबिट बैलेंस, राज फर्नीचर क्रेडिटर है क्रेडिट बैलेंस, तो यह हो सकता है। तो ये था एरर ऑफ ओमिशन। डोंट फॉरगेट द एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देख लेते, चलो ये क्या है एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन एन एरर अराइजेस because of non-compliance of accounting principle, it is known as an error of principle. So you are not complying or you are not maybe using the particular principle in your particular transaction, right? यानी नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल है उसको हम अवॉइड नहीं करते। सो दिस टाइप्स ऑफ द एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्यों? बिकॉज द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज सेम, बट इंस्टेड ऑफ वन अकाउंट एनी अदर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो यहाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल ये है कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को नॉन कंपाइल किया हुआ है, यानी नाम बदल चुका है। सी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, ₹20,000 वर्थ मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो हमने मशीनरी परचेज की है, तो एज पर द रूल यू हैव टू, एज पर द प्रिंसिपल यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एसेट, यानी मशीन का नाम लिखना है ना आपने। तो आपने परचेज लिख दिया भूल से, क्योंकि आपने बोला परचेज हुआ तो परचेज डाल दिया, लेकिन यू हैव टू राइट डाउन द मशीनरी। ये एक है। दूसरा चीज़ है ₹600 कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम रहीम इज क्रेडिटेड टू रहीम अकाउंट। हालांकि इसकी एंट्री क्या होती है, इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम रहीम, यानी रहीम इज द गिवर। नो, ये प्रॉब्लम हर बार होता है। कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिसीव्ड कमीशन अकाउंट या कमीशन अकाउंट, दो इट इज़ गिवन बाय द रहीम, इट इज़ नॉट क्रेडिटेड, ही इज़ नॉट क्रेडिटेड एक्चुअली, राइट। तो ये दोनों एंट्री हो गई। तो चलो देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। फॉलोइंग प्रोसेस इज डन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द अबव ट्रांजेक्शन। सीधे आपको एंट्री दे सकते हो। इसका एग्जांपल के तौर पर हमने इंफॉर्मेशन दी थी। चलो फर्स्ट वन, ट्रांजेक्शन क्या है, मशीनरी परचेज ₹20,000, यह है करेक्ट एंट्री। डू व्हाट इज राइट। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड ₹20,000 टू कैश अकाउंट ₹20,000, ये ओरिजिनल एंट्री आ सकती थी, लेकिन आपने क्या एरर कमिट किया है, यू रोड मशीनरी against the particular purchase of machinery, you wrote purchase account, you have to write down this entry, but you wrote this one purchase account debited to cash account। तो कैश कैश ये एंट्री सेम है, यहीं पर ही मिस्टेक है। तो लेट्स गिव द एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। तो बाय डिफॉल्ट डू व्हाट इज राइट, तो गिव द मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, राइट। ऑल्सो सिंपल मशीनरी अकाउंट डेबिट तो होता है, रिमूव और डिलीट द टोटल रॉन्ग एंट्री, दैट इज द परचेज। सो डू व्हाट इज राइट, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग, जो सही है उसको पहले सही कर दो। तो हमने कर दिया, मशीनरी को डेबिट कर दिया 20,000 के हिसाब से, लेकिन ये परचेस डेबिट नहीं होना चाहिए ना। तो एज पर दी अवर रूल, अगर परचेस डेबिट नहीं होता है तो फिर क्या करोगे, उसको वैसे तो हम निकाल नहीं देंगे। तो अगर इसको आप क्रेडिट कर देते हो राइट, तो बाय डिफॉल्ट ये एंट्री रिमूव हो जाएगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज अकाउंट 20,000। यहाँ पर आपको बीइंग लिखना है द रेक्टिफिकेशन एंट्री, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन दिस वर्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी रॉन्गली जो परचेज अकाउंट लिखा गया था उसकी जगह हमने ओरिजिनल मशीनरी की रेक्टिफिकेशन एंट्री दे दी, यानी हमें करना था ये, हमने कर दिया ये। तो इसको हटा के हमने इसको डाल दिया और ये जो डेबिट था उसको क्रेडिट किया। तो यहाँ कोई भी प्रिंसिपल जो है राइट, उसका हमने सही तरीके से यूज़ करके उसको रिमूव कर दिया है, हमने उसका कोई मिसयूज़ भी नहीं किया है। तो इससे हम रेक्टिफिकेशन कह सकते हैं। लेट्स डू इट विद द एक्सप्लेनेशन। अब इसकी ज़रूरत यह है, बिफोर दैट वन मोर इज दैट, जो हमने दूसरा दिखा था, कमीशन रिसीव्ड ₹600 फ्रॉम रहीम। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री एक्चुअली क्या होनी चाहिए, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड 600 टू कमीशन रिसीव्ड और कमीशन अकाउंट 600। जब कमीशन अकेला क्रेडिट होता है तो समझ लो वो रिसीव्ड ही है, राइट। लेकिन हमने एरर क्या कमिट किया है, एरर कमिट किया है कैश अकाउंट डेबिटेड और हमें रहीम का अकाउंट क्रेडिट किया है, रहीम एज द गिवर के तौर पर। तो डू व्हाट इज़ राइट, तो हमें उसको पहले राइट करना है। तो राइट करने के लिए
कैश तो कम हो गया, तो ये एंट्री तो सही है, तो उसको तो हमें कुछ करना नहीं है। तो राइट क्या करना है, सिंपली यहाँ हमें रहीम की जगह कमीशन लिखना है। लेकिन रहीम सही मायने में क्रेडिट नहीं होता है, तो फिर उसको क्रॉस एंट्री देके, उल्टा एंट्री देके उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसे हम डेबिट कर लेंगे। तो समझ लो जो क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, भूल से जो डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो। यहाँ क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दिया, रहीम अकाउंट डेबिट 600 टू ओरिजिनल एंट्री कमीशन अकाउंट। तो बाय डिफॉल्ट ये एंट्री आ गई, रहीम कैंसिल, कैश टू कमीशन, कैश टू कमीशन, ये दोनों रिमूव। So being the rectification entry for commission received from Rahim wrongly credited to Rahim's account. हमने wrongly उसके अमाउंट रहीम के नाम से क्रेडिट किया था, वो रेक्टिफाई कर दिया है। एक्सप्लेनेशन, इन रिकॉर्डिंग बोथ द ट्रांजेक्शंस देयर इज नो एरर इन कैश अकाउंट। कैश में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में हमने सही देख रहे हैं, कैश कम्स इन कैश गोज आउट, दोनों सही जा रहा है। बट इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ मशीन। टू रेक्टिफाई दिस एरर द करेक्ट अकाउंट दैट इज मशीन, ये आपको समझ के लिए, मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड वाइल परचेज अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड विच विल बी क्रेडिटेड। टू रेक्टिफाई दैट एंट्री, तो सही करने के लिए हमको, सही करने के बाद जो गलत है उसको रिमूव करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट दिस वन। अदर वन, नेक्स्ट वन में रहीम अकाउंट्स क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ कमीशन, तो देयरफॉर इन रेक्टिफिकेशन एंट्री करेक्ट अकाउंट दैट इज कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड रॉन्गली क्रेडिटेड रहीम्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो जो सही हो सही करो, गलत है उसको रिमूव कर दो, दैट्स ऑल। थर्ड वन, एरर्स ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट। इन सच टाइप ऑफ एरर, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग करेक्ट अकाउंट द अदर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। यानी ये जो एरर है वो डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट का है। जो सही अकाउंट है उसको डेबिट करने की और क्रेडिट करने की जगह हमने दूसरा अकाउंट ले लिया है। सो द अदर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। थस बाय डेबिटिंग और crediting a wrong account with correct amount on the correct side, the trial balance becomes or it will remains unaffected। तो ये कैसे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, तो हमने क्या किया है, अमाउंट तो सही लिखा है लेकिन हमने डेबिट क्रेडिट अकाउंट जो है वो रॉन्ग किया है। सो ये कैसे हुआ, तो उसके लिए एग्जांपल देखना पड़ेगा। लेकिन फिर से एक बार याद रखो, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग करेक्ट अकाउंट, हमने अकाउंट ही अलग डेबिट और क्रेडिट कर दिया है, तो ट्रायल बैलेंस तो आइडेंटिकल आएगा ही आएगा। सो इट विल बी नॉट अनअफेक्टेड, इट विल बी नॉट अफेक्टेड। सो फॉर एग्जाम्पल ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम ईवा इज क्रेडिटेड टू रियास अकाउंट बाय मिस्टेक। सो यहाँ हमने पैसे रिसीव किए ईवा से लेकिन क्रेडिट कर दिया रिया का अकाउंट बाय मिस्टेक। तो हमारा एंट्री क्या आएगा, ओरिजिनल ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव ₹1000 फ्रॉम ईवा। करेक्ट एंट्री क्या हो सकती है, क्या लिखनी थी हमें, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज वी रिसीव द 1000 फ्रॉम ईवा। सो कैश अकाउंट डेबिटेड ₹1000 टू ईवास अकाउंट, तो ये लिखना था। हमने क्या लिखा, एरर कमिट किया, कैश अकाउंट तो सही लिखा है लेकिन द नेम ऑफ द ईवा इज नॉट देयर, वी रोट द रियास अकाउंट। सो कैश तो सही जा रहा है तो रिया नहीं है, रिया का अकाउंट है ही नहीं, ट्रायल बैलेंस अनअफेक्टेड रहेगा क्योंकि अमाउंट सेम है। तो अब रिया को डेबिट कर दो तो बाय डिफॉल्ट ये रिमूव हो जाएगा, और द ओरिजिनल एंट्री, तो रिमूव व्हाट इज रॉन्ग and give the right entry. So Riya's account debited 1000 to Eva's account 1000. Being the rectification entry, don't forget to write down the rectification entry first of all and then after give the information. Being the rectification entry for ₹1000 received from Eva wrongly credited to Riya's account. Here wrongly credited 1000 to Riya's account will be debited and correct account that is Eva's account will be credited in rectification. तो एंट्री के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाता है सिंपली। फोर्थ वन, एरर ऑफ कमीशन। ये क्या है, ये कमीशन जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, देख लो। वाइल राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ द ट्रांजेक्शन इन प्राइमरी बुक्स आर रिकॉर्डेड आइदर मोर और लेस देन द करेक्ट अमाउंट और इट इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, सच एन एरर इज नोन एज एन एरर ऑफ कमीशन। ये खास याद रखना, ये बहुत और तरीके की एरर है। क्यों, कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, राइट, ट्रांजेक्शन प्राइमरी बुक्स में जाते हैं, जनरल में देते हो या सब्सिडरी कोई भी बुक्स में देते हो, जनरली बुक्स में हम जनरल में देते हैं। सो व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दैट वन, आइदर मोर और लेस देन द करेक्ट अमाउंट, कुछ अमाउंट ज़्यादा लिख दी, 5000 लिखना था लिख दिया 500, कुछ अमाउंट कम लिख दी, यानी कुछ कम लिख दी दैट इज़ 5000 के बजाय 500, और कुछ ज़्यादा लिख दी 500 की जगह 5000।
ओके, तो ये हो गई मे बी मोर और लेस अमाउंट। और इट इज़ रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, आपको लिखना था परचेस में, आपने लिख दिया सेल्स में, आपको लिखना था परचेस में, आपने लिख दिया परचेस रिटर्न में। मे बी द मिस्टेक्स आर देयर, जल्दी में हो जाता है। सो सच एन एरर इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। ये इंटेंशनली नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट परचेस देखने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि परचेस अकाउंट ये डाल दिया लेकिन वो परचेस रिटर्न था। तो याद रखो ये कमीशन एरर कैसे क्रिएट होता है, जो अमाउंट है उससे कम या ज़्यादा अमाउंट लिख देते हो आप, या फिर सब्सिडरी बुक्स रॉन्ग है उसमें आप डाल देते हो। सीधा फर्स्ट वन, उसमें 3 अलग अलग टाइप हैं, राइट। पहला वाला है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक बाय मोर और लेस अमाउंट। आपने क्या लिख दिया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया करेक्ट बुक में, जो भी है, जर्नल है, जर्नल प्रॉपर है, परचेज है, परचेज उसमें डाल दिया सही मैडम, बट अमाउंट इज़ मोर और लेस, अमाउंट ज़्यादा कम लिख दिया है। लेट्स सी विथ एग्जांपल। फर्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड टू शाहिद इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज ₹50। तो हमने गुड्स सोल्ड किया है शाहिद को, वो रिकॉर्ड हुए ₹50 से, तो एक्चुअल एंट्री क्या है देखते हैं हम। दूसरा है बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज ₹700 इन कैश बुक। देखो बुक सही में है, राइट, लेकिन अमाउंट भी हो सकता था सही, लेकिन साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है चार्जेस जो भी है, राइट, वो 70 थे, रिकॉर्ड हो गए 700। देख लेते हैं। तो गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड टू शाहिद, करेक्ट एरर एंड एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। तो ये करेक्ट एंट्री है, ये एरर जो हमने कमिट किया ओरिजिनल ये हमने दिया है, राइट, एक्चुअली होना ये चाहिए था। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड टू शाहिद, तो सिंपल थिंग, वी सोल्ड टू शाहिद यानी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, शाहिद इज द रिसीवर, शाहिद अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, गुड्स गोस आउट। अब क्या करते हैं, लेट्स मूव टू दी एरर कमिटेड। जो हमने एरर किया है, शाहिद इज द रिसीवर, दैट्स गुड, बट द अमाउंट जो भी है, राइट, वो हमारा जाता है 500 की जगह 50। तो इस एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं है, एंट्री सेम जा रही है, प्रॉब्लम है अमाउंट में, तो कुछ करना नहीं है, फिर से वो एंट्री दे दो, राइट। तो शाहिद अकाउंट डेबिटेड 50 टू सेल्स अकाउंट 50, एक्चुअली देना था हमें 500, तो 450 लेस 500 माइनस 50, ₹450 लेस गिवन। तो ये एंट्री तो सही है, तो एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं है। तो रेक्टिफिकेशन में सेम एंट्री, ओनली अमाउंट इज देयर, इट विल इंक्रीज्ड। So being the rectification entry for the goods purchased from Shahid by less amount, सिंपल। ये एंट्री सीधी जा रही थी, हमने जर्नल में नहीं लिखा था, लिख दिया। अगर दूसरी एंट्री, अब दूसरी एंट्री में देखो, दूसरी एंट्री हमने कैश बुक में दी थी, राइट, लेकिन रेक्टिफाई एंट्री कैश बुक में नहीं होती, वो जर्नल प्रॉपर के थ्रू ही जाती है। सो बैंक चार्जेस ₹70, करेक्ट एंट्री। बैंक चार्जेस ऑलवेज दैट इज एक्सपेंसिस था, तो एक्सपेंसिस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो इट इज डेबिटेड विद ₹70, ऑलवेज बैंक इज द गिवर, क्योंकि बैंक में से अमाउंट जाएगा, तो 70। अब हमने मिस्टेक किया है, एरर कमिट किया है, लिखना था 70, लिख दिया 700, तो कितना ज़्यादा लिखा है 630, 700 माइनस 70, तो बैंक चार्जेस डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एंट्री सेम है, लेकिन हमारी जो अमाउंट है वो ₹630 ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए डू व्हाट इज़ राइट, रिमूव व्हाट इज़ रॉन्ग। तो रॉन्ग है तो 630 निकलना चाहिए, तो कैसे निकलेगा, बैंक से क्रेडिट किया है तो बैंक से डेबिट कर दो, अपोजिट एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये बैंक चार्जेस है ही नहीं, तो फिर उसको टोटली रिमूव कर दो, दैट इज बैंक चार्जेस। तो बाय डिफॉल्ट 700 माइनस 630, एंट्री आ गई 70। हमने देखा था कितना ज़्यादा है, तो 700 माइनस 70 इतना ज़्यादा था, तो उसको रिवर्स कर दिया, उसकी अपोजिट एंट्री दे दी, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया 630। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर रिकॉर्डेड एक्सेस अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट थी उसको हमने निकाल दिया। So with the explanation, Shahid account and sales account are recorded less by 450, so we gave the entry 450, एंट्री सेम जाएगा। और दूसरी एंट्री बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड मोर, ज़्यादा लिख दिया था 630 से, तो रिवर्स एंट्री दे दी हमने उसकी, राइट, जो भी था, तो इट विल बी मेड इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो बैंक अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट किया, और बैंक चार्जेस जो डेबिट किया था उसको राइट कर दिया, सो दैट्स ऑल। तो सिंपली वी कैन से दिस आर दी एरर्स, ओके। लेट्स मूव टू द B1, बट आई विल स्टार्ट दिस वन इन द नेक्स्ट सेशन। अभी 3 एरर्स बाकी है, जो 2 एरर्स है इसके कनेक्टेड है, और एक एरर है जो कॉम्पेंसेटरी एरर्स है, उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन। थैंक यू।